And welcome back again in your geography classes. I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, now from today we are going to start another chapter, and this chapter is about the transport. So now in this video session we are going to understand about the means of transport, and then after that the importance of the transport. Now in this video session our topic is the means of transport and the importance of the transport. Okay, students, if you just look in the chapter, so you see that this is your transport chapter, and now first we are going to cover the syllabus. What the syllabus that we are going to cover in this chapter? So now the importance and the modes. First we are going to cover the importance and the modes. Now we are going to cover railways, then after that the airways, and then after that the roadways, and advantages and the disadvantages of the given transport system. So now we are going to start the chapter, and first we are going to cover the introduction part. Transport system is like the arteries and veins in the human body. It helps in connecting one part of the country with the other. It facilitates the movement of raw material, fuel, machinery to the points of production, and finished goods to the points of the marketing and the consumption. Okay, students. Now, students, if we are just looking for the transport, so transport is very important for our life. Students, all of you know that we all are depend on the transport. अगर हम लोग सीधी बात करें बेटा, तो हमारा जीवन ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है. बिना ट्रांसपोर्ट के आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जो भी चीजें हमारे अगल बगल सराउंडिंग्स में हमें दिख रही हैं, वो लगभग सारी चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्टेड होती हैं, और इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. कुछ चीजें जो हमारी रोडवेज से आती हैं, कुछ चीजें रेलवेज से आती हैं, कुछ चीजें एयरवेज से आती हैं, और कुछ चीजें वाटरवेज के थ्रू हमारे तक पहुंचती हैं. अब जैसे अगर एक एग्जांपल को हम लोग समझे, जैसे बेटा हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है उसका फंक्शन आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि मेन जो फंक्शन है हमारे हार्ट का, वो हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेशन कराना होता है, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो हर बॉडी के पार्ट में कनेक्ट होती हैं. उसी तरीके से अगर हम लोग हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें तो वो हमारे इंडिया के हर एक पार्ट से कवर है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करता है. और जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो बेटा टोटली हमारी ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें जब भी कोई चीज का प्रोडक्शन करना होता है तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो कि ये हमें कहां से मिलता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे इंडस्ट्री तक पहुंचता है. और जब ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देती हैं तो फिर ये मार्केट तक फिर ये ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है. फिर उसके बाद से नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस. तो नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो नाउ स्टूडेंट यू सी दैट फ्यू पॉइंट्स आर गिवन. Transport helps in the better utilization of the resources of the backward areas by linking them with the more advanced areas. It aids the process of the industrialization and the urbanization. It removes the scarcity of goods during any crisis. It helps in minimizing the effects of natural disaster. It brings the homogeneity and the national integration throughout the culture through easy movement of the people and bringing them contact with one and other. Okay, student. Now just we are going to understand about the importance of the transport. So now the first point that telling us about that जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, हमें रिसोर्सेस के इस्तेमाल के लिए और उनके फुल्ली यूटिलाइजेशन के लिए बहुत मददगार होता है. जैसे आपको पता है अगर हम रिसोर्सेस की बात करें, जैसे आयरन ओर हो गया, क्रूड ऑयल्स हो गए, अगर इनको ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर ये आयरन ओर और क्रूड ऑयल ये हमारे किसी काम के नहीं होते. तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट की मदद से हम लोग अपने रिसोर्सेस का फुल्ली इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की. इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन मींस औद्योगिकरण और शहरीकरण, इन दोनों में हमारे
हमारे लिए ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी एक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे जहां कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, लाइक द अर्थक्वेक, लाइक सुनामी, लाइक फ्लड। तो इन दिस सिचुएशन द ट्रांसपोर्ट जस्ट हेल्प अस। जो ट्रांसपोर्ट होता है वही हमारी हेल्प करता है। जो उसमें घायल होते हैं, जिनको मेडिकल की जरूरत होती है, उनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी हम लोग हॉस्पिटल भेजते हैं। वहां जो खाने की दिक्कतें होती हैं वहां पर फूड सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से भी हमारी मदद करता है। फिर इन द लास्ट पॉइंट दैट इज गिवन, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, द कनेक्टिविटी ऑफ प्लेस टू प्लेस। जो हमारा, जैसे आपको पता है, अवर इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हमारा जो कंट्री है वो बहुत बड़ा कंट्री है बेटा, और उसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो कनेक्टिविटी बनी है, जो हमारे कल्चर्स और भी चीजें जो एक दूसरे से हम लोगों ने समझा जाना, वो ट्रांसपोर्ट की ही मदद से हुआ। तो नाउ बेटा जस्ट वी आर गोइंग टू now some important points for your exam. If suppose that in board paper the question is asked what is the importance of the transport, so you have to write any 3 points. If the question is for 3 marks, so then you write only 3 points. If the question is 2 marks, so you write 2 points. And if you question is asked for 1 mark, so you write any 1 point. Okay students, now in this video session we understood about the means of transport and the importance of transport. Now next video session we are going to understand about the roadways and railways. Thank you.